بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل چوتھے پارے کے آخر میں بات چل رہی تھی ان رشتوں کی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، یہاں تک بات آئی۔ اور پانچویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے اور ان عورتوں کو بیان کیا ہے جن سے نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں بیوی کے تعلق سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ بیوی کون سی؟ نافرمان۔ کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب میاں بیوی ہیں تو زندگی گزر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 19-20 تو ہوتا ہے۔ اب جہاں دو برتن ہیں تو آواز تو بولو آتی ہے، اب جب میاں بیوی ہیں ایک جگہ تو ان کی بھی آواز آتی ہے، اور بس اوقات اتنی آتی ہے کہ بولنے والے بھی سنتے ہیں۔ اتنی نہیں آنی چاہیے لیکن اللہ نے ہمیں ان آیتوں میں بیان کر۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ دیکھو جب نماز پڑھنا ہے ہم کو، قرآن پڑھنا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جہاں طہارت ہونا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وضو کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ پانی سے کرتے ہیں عام طور پہ، یا پھر کبھی غسل کرنا ہوتا ہے، جیسے احتلام ہو گیا یا بیوی سے ملاقات ہو گئی تو پھر یہاں غسل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ابھی وضو اور غسل کس چیز سے کرتے ہیں ہم؟ پانی سے کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تم کو پانی نہیں ملتا ہے، ریگستان کے علاقے میں آپ رہ رہے ہیں سمجھ لو، یا پانی کی پریشانی چل رہی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا جو ہے ایک الٹرنیٹ بنایا ہے، اس کا قائم مقام بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ وہ ہے پانی کا الٹرنیٹ جو ہے پاک مٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وضو کا جو قائم مقام ہے وہ تیمم ہے۔ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کرنا ہے؟ وضو کی جگہ تیمم کرنا ہے۔ ان تمام مسائل کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اچھا بھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت، جو بندہ جس چیز کا اہل ہے وہ چیز اس کو دے دینا، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو، جو ان امانتوں کا اہل ہے اس کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے انہی کو دے دو۔ اصل میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا داخل ہونے سے، اور اس وقت خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ کس کے پاس تھی؟ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، شاید تم ایک دن خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اور اس وقت مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہے چابی دے دوں گا۔ نبی نے فرمایا اس وقت، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے وہ چابی لی اور خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی، اور واپس آنے کے بعد واپس سے حضرت عثمان بن طلحہ کو وہ چابی سونپ دی، اور یہ کہہ کر سونپی کہ اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر کے 1450 سال ہوا، آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی ہے، کوئی نہیں لے سکا اسے، اور کون لینے کی ہمت کرے گا؟ کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، لہٰذا آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلتی ہے۔ اس پر اللہ نے بیان کیا۔ اچھا بھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بھائی اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے
اور तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर नबी से इस्तिग़फ़ार करवाओ, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करवाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें यकीनन माफ करेंगे। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। और अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म करते हैं गुनाह करके और फिर आपके पास आते हैं नबी और अल्लाह से भी मग़फ़िरत मांगते हैं और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो यकीनन वो अल्लाह को माफ करने वाला पाएंगे। तो अब ये हुक्म जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में था, जब आप जिंदा थे, हयात थे, और उस वक्त जब आपकी खिदमत में कोई जाकर आपसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त कराता था, क्योंकि आप तो हमारे नबी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये हुक्म अब भी मौजूद है। लिहाजा उलमा फरमाते हैं अगर आज भी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त करेगा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए आप अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, यकीनन सुनते हैं। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात सुन ली और नबी अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगी अगर हमारे लिए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज भी ये हुक्म बाकी है, इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 5वें पारे के आखिर में एक बड़ी उम्मीद वाली आयत नाज़िल फरमाई है। वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। देखो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारोगे और ईमान वाले बंदे बनकर जिंदगी गुजारेगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको अज़ाब में मुब्तला करे। यानी दो चीजें अपनाना है और अल्लाह के अज़ाब से बचना है। वो दो चीजें क्या हैं? एक तो अकाईद का ठीक करना, अपने अकीदे यानी अपने अकीदे को दुरुस्त रखना, और दूसरी चीज है अल्लाह ने हमको जो नियामतें दी हैं उस पर शुक्र अदा करते रहना। जब ये दो चीजें हम अपनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं कि अल्लाह हमें अज़ाब में मुब्तला करे। करेंगे भी इस पर अमल? अल्लाह में इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठे पारे की इब्तिदा में यहूदियों के एक दावे की तरदीद फरमाई है। यहूदियों का दावा ये था कि यहूदी ये कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया और उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन हम ईमान वाले हैं, हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें जिंदा उठाया है। उसको अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न उनको कत्ल, न वो कत्ल हुए, न वो सूली पर चढ़ाए गए, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनकी जगह एक दूसरे ऐसे शख्स को उन्होंने सूली पर चढ़ाया था जो हजरत ईसा की शक्ल की तरह। बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पर उठाया है। व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह बड़े जबरदस्त हिकमत वाले हैं। और हम लोगों का यह अकीदा है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत आसमानों से इस दुनिया में फरिश्तों के कंधों पर हाथे रखे उतरेंगे और नाजिल होंगे। ये हमारा अकीदा रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुल माइदा। माइदा अरबी में किसको कहते हैं भाई? माइदा अरबी में कहते हैं दस्तरखान को, ठीक है। चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह दस्तरखान के नाजिल करने की दुआ मांगी थी, और उसका इसमें तज़किरा है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल माइदा रखा गया है। अब उसमें बेशुमार अहकामात बयान किए हैं। इस सूरत के इब्तिदा में 9 चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने हराम करार दी है, वो सुने ध्यान से। तो 9 चीजें क्या हैं? अल्लाह फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है मुर्दार। कौन सी चीज है भाई? इससे पहले भी बात आई थी, यानी मुर्दार जो भी चीज है वो डायरेक्ट हराम है। बहने वाला खून, अब बहने वाला खून क्यों कहा अल्लाह ने? देखो, एक खून रहता है जमा हुआ, जिसको हम बोलते हैं कलीजी। कलीजी खाते हैं ना आप लोग, ये कलीजी भी खून ही है, लेकिन ये जमा हुआ है, तो ये हराम नहीं है। इस वजह से कहा गया कि बहने वाला खून हराम है, खिंजीर हराम है, और वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर जुबा किया गया, और जो जानवर को उसका गला दबाकर मार दिया गया, ठीक है, और वो जानवर जो किसी सख्त मार के जरिए से उसको हलाक किया गया, यानी किसी चीज से मारा गया और वो मर गया, तो ऐसे भी जानवर हमारे लिए हराम है उसका काम। और जो ऊपर से नीचे गिरा हो, जैसे
छत पे हो कोई जानवर या ऊंची जगह पर और नीचे गिरकर वो मर गया, अब उसका खाना हराम है। या जो किसी एक्सीडेंट में मर गया वो भी जानवर हराम है। या फिर ऐसा जानवर जिसको किसी दरिंदे ने फाड़कर मार दिया, ये भी जानवर खाना हराम है। अलबत्ता ऐसी कंडीशन में हमें, ऐसी सूरत हाल में है कि भाई हमारे पास खाने को कुछ है ही नहीं, अगर हमने अब नहीं खाया कुछ भी तो हम मर जाएंगे, और ये चीजें, ये तमाम चीजें उस वक्त मौजूद है हमारे पास, तो अब इनमें से खाया जा सकता है, लेकिन कितना, उतना ही खाना है जितने खाने से हमारी जिंदगी बच सकती है। समझ में आ गई बात? और ये 9 चीजें बयान की गई। शुरू की 4 चीजों को छोड़कर, खिंजीर, मुर्दार और वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया, इन 4 चीजों को छोड़कर जो लास्ट की जो 5 चीजें हैं, जानवर 5 किस्म के, जिसको मारा गया है या वो पूरा मरा नहीं या इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जानवर में अभी थोड़ी जान बाकी है और उससे पहले आपने इसको जुबा कर दिया, तो फिर इस जानवरों का इस्तेमाल करना और खाना हमारे लिए क्या होगा भाई? हलाल होगा। इसको अल्लाह ने बयान किया। अब जो आखिरी बात जो आज की है, जहां तक हमारा कुरान तराजू में हुआ, उसमें बड़ी अहम बात बयान की अल्लाह ने, और वो बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबिल और काबिल की। वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल के वाक़ये का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का जो निज़ाम चलाया, हजरत आदम और हजरत हव्वा से चलाया। वो दोनों इस दुनिया में अल्लाह ने दोनों को भेजा, और किस तरह सिलसिला शुरू हुआ औलाद का और इस दुनिया के बढ़ने का। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है, जब हमल होता था, प्रेग्नेंट वो होती थी, तो हर हमल में 2 जुड़वा बच्चे होते। कितने होते थे? जुड़वा। और अल्लाह की शान ऐसी, जुड़वा में एक लड़का होता था और एक लड़की होती थी। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। अब एक हमल से जो लड़का और जो लड़की हुई है, वो तो आपस में सगे बहन भाई की तरह, यानी इनका निकाह नहीं हो सकता था। और जब दूसरी बार जो हमल होता था, उसमें भी जो लड़का और लड़की होती थी, वो सगे बहन और भाई। और जो पहले से बहन भाई भी हैं, लड़का लड़की, जो 4 हो गए, पहले का लड़का लड़की और बाद की हमल का लड़का लड़की। हमारे यहाँ तो क्या होता है आजकल, एक औरत से कितने भी बच्चे हो गए तो सब बहन भाई हैं, सगे, लिहाजा वो निकाह आपस में नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस बात को जायज करार दिया था कि हजरत हव्वा के पेट से एक मर्तबा जो लड़का लड़की पैदा हुए, वही सगा बहन भाई, सगे बहन भाई, और दूसरे हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हुए, ये सगे बहन भाई। अब वो ऊपर वाले लड़का और लड़की की ये सगे बहन भाई नहीं माने जाते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या होता था, जो पहले हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हुई, जो लड़का पैदा हुआ, दूसरे हमल की लड़की से उससे निकाह जायज था, और पहले वाली जो लड़की थी उसका निकाह दूसरे हमल वाले लड़के से कराया जाता था। इस तरह अब हाबिल और काबिल थे 2, तो हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो थी बड़ी खूबसूरत, वो कम खूबसूरत थी वो, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो जरा ज्यादा खूबसूरत थी। और शरीयत के हिसाब से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के हिसाब से, हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो काबिल को आने वाली थी, और काबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, वो हाबिल के हिस्से में आने वाली थी। लेकिन काबिल को ये बात पसंद, वो ये चाहता था कि मेरे साथ जो पैदा हुई है, जो खूबसूरत थी, उसी से मैं शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, तुम दोनों कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई अल्लाह के यहाँ, उसका इसी ने कहा वो खूबसूरत लड़की से। दोनों ने कुर्बानी दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और खूबसूरत लड़की का उससे निकाह हुआ। और काबिल जो था उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसने फौरन जाके हाबिल का काम तमाम कर दिया, उसकी गर्दन मार दी, उसका मर्डर किया, उसको कत्ल किया। तो फिर उसको अल्लाह ने इस आयतों में बयान फरमाया है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो औरत का जो चक्कर है आज का नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। लिहाजा उलमा ने लिखा है कयामत तक जितने मर्डर होते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, वो सब काबिल भाई के खाते में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि एक उसूल है, एक कायदा है, जो भी बुराई की इब्तिदा करता है उसके बाद आने वाले जितने लोग बुराई करेंगे उसका गुनाह तो उसको मिलेगा, लेकिन बाद में करने वालों का गुनाह भी उसके खाते में जाएगा।
اور اگر کوئی انسان اچھائی کرتا ہے شروع میں اور بعد میں آنے والے جو اچھائی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو کرنے والوں کو بھی ملے گا اور جس نے اس کو چالو کیا تھا اس کو بھی ملے گا. تو آپ جو یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے دنیا میں, جو ایجاد کیا یہ قابل نے کیا ہے, یہاں سے مرڈر کا سلسلہ شروع ہوا. لہٰذا اس کو اس حابیل اور قابل کی جو قربانی تھی اور جو حابیل کی قربانی قبول ہوئی, اس قربانی کا تذکرہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.